how you give an opinion in case of if the person is insane, how you assess him, that which is the the rule that is applied. It is McNaughton's rule. So when we are talking about mental disorders, some of the important symptoms that are associated with are the psychiatric disorder or mental disorders are, you must have heard, are delusions, hallucination, illusion, impulse, and obsession. These are the commonly terms which are used in psychiatry in a person who is, if he is suffering from any medical condition, if he has any history of any psychiatric illness, these are the terms that are commonly used. So what is a mental disorder? A mental disorder is basically, it's an umbrella and it contains the different type of symptoms. It covers the different type of symptoms. Like as you can see in the picture, there is mood disorders, there is eating disorders, there are personality disorders, cognitive and developmental disorders, anxiety, psychotic, substance related disorders. Now substance related disorders are the substance of abuse, commonly abuse of alcohol, abuse of drugs like tranquilizers, abuse of seen as depressant substances like LSD, like cocaine, like cannabis, like marijuana or a morphine. These are commonly substances that have been used for abuse, and they are a drug or dependence in an individual, and they may cause mental disorders. And finally is the physical disorders. Now these are all the symptoms that are included in the mental disorders, and these symptoms, they are found in the following cases of psychiatric illness. So now one by one we'll discuss these psychiatric or mental disorders. Delusion. Commonly when we are talking in terms, we use the term like either he or she is deluded. Now why would we use this term? What is the importance of knowing this this term? Basically delusion is a false belief, a belief that based on the inference of the external reality, means that the external stimuli is present. The stimuli is what? Object that is present, and the person, he defies that evidence, means he contradicts that evidence. His mind does not accept that the external substance is present, or external stimuli is present. That's why it is known as the false belief. His beliefs are altered, means that the external object is true, it is present, but his mental capacity and his mental definition of that object is altered. His beliefs are altered. Now there are symptoms of schizophrenia. Commonly, जो हम mental disorders पढ़ेंगे, the common symptoms that are included in this is schizophrenia. Schizophrenia is basically a non-organic mood and psychological disorders. There are organic disorders and there are non-organic. So this is non-organic. Organic disorders जो होते हैं, basically they are those in which there is some pathology in the brain, there is some chemical imbalance in the brain, there is some underlying disease in the brain. So that will be included in organic disorders. Commonly organic disorders क्या होते हैं? Like dementia, जो कि age related होते हैं, जिसमें central nervous system की degeneration होती है, ये commonly इनमें involved होता है. इसी तरह delirium होता है. Delirium is also because of any deficiency in the chemical deficiency in the brain, जो कि underlying cause होती है, जिसकी वजह से वो deficiency develop होती है. It is also a organic cause of brain disorder. Delusions are not seen in neurotic illness. अच्छा, neurotic illness होती है, इनमें नहीं मिलते, anxiety में नहीं मिलते, neurosis में नहीं मिलता, और commonly जो OCDs जिसको हमको term करते हैं, जिन जो लोगों में obsessive compulsive disorders होते हैं, इनमें delusions नहीं होते. Means they understand what is the object is there, the definition of an object they know. Patient के जो symptoms होते हैं, वो एक तो ये होता है he suffer from insomnia,
hallucination, which is one of the mental disorder, and disorientation. He is disoriented on the time place person. It is seen in the mental unsoundness, means insanity, pardon, drug intoxication, as we have discussed. Datura poisoning. Datura is basically, it's a type of toxic substances which depresses the central nervous system, and continuous exposure to high temperatures may result in delusion. तो इसमें नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज भी होते हैं, ऑर्गेनिक कॉजेज भी होते हैं. इफ दोज अंडरलाइंग सिम्टम्स आर रिमूव, then the individual may return back to its normal condition. Now the types of delusion are delusion of grandeur. अच्छा, पिक्चर से पता चल रहा है कि the interpretation of he himself will be, he will think of himself as a grand presentation होती है उसकी. Like he imagines himself that he knows, or he is withdrawn from the reality. He will define himself as above all euphoric conditions hoti hai. That is a grandeur type symptoms hote hain. It is usually seen in mania. Now manic episodes वही होते हैं कि जिसमें जो symptoms मिलते हैं वो delusion के मिलते हैं, euphoria होता है, और मींस पर्सनालिटी जो होती है वो थॉट जो होती है वो एक्सप्रेस आउट हो रही होती है, मतलब लाउड पर्सनालिटीज होती हैं ऐसे लोगों में. तो ये मेनिया में मिलता है. And may be associated with delusion of persecution. It is another type of delusion which will be discussed further. तो उसकी interpretation ये होती है कि if his personality is very timid, then he looks at himself and he defines himself, he will define himself as the grand presentation वो अपनी करेगा. Like he will not be a timid, he will say he have a strong personality, like superpowers. मतलब reality से हट के वो अपनी बात करेगा, जिसमें वो अपनी फिक्शस जो उसकी फिक्शन बनाएगा अपने अतराफ यूनिवर्स, उसकी वो पर्सनालिटी प्रेजेंट कर रही होती है. फिर है डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी. मींस ही विल, ऑल्दो ही इज फाइनेंशियली स्टेबल, ही हैज ऑल द मींस, ही इज अर्निंग वेल, बट स्टिल क्योंकि वो डिल्यूजन को रियलिटी को डिफाई कर रहा है, देयर इज ऑलवेज अ थॉट इन हिज हेड दैट व्हाट आर द मटेरियल पोजेशंस आई डोंट हैव एनी मटेरियल पोजेशंस, आई एम पुअर, I don't have money. So these are kind of another type of delusion. Delusion of reference, ये commonly जो है ये वैसे भी अगर insanity की बात ना करें तो ये वैसे भी society में मिलता है, but जो वो reference है that is not mental illness. The person believes that he's being referred by all agencies. Means he'll think that throughout the people surrounding him, the media, the social media, the people, his office people, his work people, his family members, they are all uttering some negative comments about him, and that's what he's concerned about. That means they are planning something against him. All the universe is against him. There's some, he'll think that there's some kind of thought behind him which will degrade him. So this is known as the delusion of reference. Then a hypochondrial delusion. Hypochondrial delusion में most commonly अगर clinicians हो, ऐसे केसेस, ऐसे पेशेंट्स उनके पास क्लिनिक्स में बहुत आते हैं. ये उस तरह के पेशेंट्स होते हैं कि जो कि जिनकी फेयर और बिलीफ होती है कि अगर उनको कोई स्मॉल सिम्टम भी हो, मीन्स फॉर एग्जांपल इफ ही इज हैविंग अ हेडेक, he will define that headache as if he is suffering from any God forbid cancer. Now this cancer has been worst हो गया है, उसके symptoms ऐसे आ रहे हैं. If during brushing he develops a gum bleed, वो उसकी definition करेगा, maybe this is something else, I'm suffering again from a cancer or mouth cancer, or there's something going on inside the body. तो वो multiple doctor के पास जो है वो अपनी visits करता है क्योंकि वो अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है, और मल्टीपल टाइम उसका फिजिशियन उसको बोलेगा भी कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी माइनर थिंग. he will defy it and he will define and diagnose his condition as his own. तो इसको hypochondrial delusion कहते हैं. फिर है delusion of persecution, जो कि हमने delusion of grandeur में पढ़ा था. ये होता है कि patient imagines that he is being poisoned by his relatives or his friends or his family. ये thought होती है कि someone is going to hit him, someone is going to assault him,
someone is going to मतलब उसकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं अराउंड द अदर पीपल, जिसकी वजह से वो इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ और स्ट्रॉन्ग थॉट्स होती है जिसपे वो जो है वो सुसाइड कमिट कर सकता है। इसीलिए ऐसे जिनकी मेंटल डिसऑर्डर्स, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स, कॉमनली जो प्रेजेंट सिनेरियो आता है वो ये कि दे कमिट सुसाइड बिकॉज उनकी थॉट्स ही उनके कंट्रोल में नहीं होती हैं। अच्छा, इसी तरह डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है कि उसकी या कंट्रोल होता है, इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स और एक्शंस जो हैं वो उसको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। मींस देयर एक्सटर्नल सिमुलाई जो है वो जो कि प्रेजेंट नहीं है, और वो ये सोचेगा कि समटाइम आइदर उसको हिप्नोटिज्म या टेलीपैथी या समवन इज टेलिंग हिम टू डू समथिंग, जो कि जो थॉट्स होंगी वो नेगेटिव थॉट्स होंगी या मर्डरस थॉट्स होंगी या सेल्फ क्रिटिकल जो होंगी वो सेल्फ थॉट्स होती हैं, और वो कमांड होगा, थॉट्स जो होती हैं वो कमांड लाइक होती हैं, एंड ही हैज टू फॉलो इट, एंड इफ ही डजंट फॉलो इट उसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में फिर चेंजेस आते हैं, क्लैशेस होते हैं, एंड ही विल कमिट अ क्राइम। Now, why are we studying a medical? Why are we studying a delusion? इसकी importance क्या है? Importance ये है कि for a case to be presented, अगर किसी के पास आता है तो उसमें उसकी criminal responsibility क्या होती है? Either they will be, if they are insane, either they will be underlined for commission of crime or not. तो इसमें आता है टर्म डॉक्ट्राइन ऑफ डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये होती क्या है टर्म? इसका मतलब ये है कि ये प्रूव्ड होता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मल मेंटल फंक्शन। ये प्रूव करना जरूरी होता है। कौन प्रूव करेगा? जो साइकियाट्रिस्ट होगा उसका, वो प्रूव करेगा दैट ही इज सफरिंग, अपनी ओपिनियन देगा दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस। फिर ये है कि जो मेंटल इलनेस है वो रिकग्नाइज्ड है। रिकग्नाइज का मतलब है कि ऑलरेडी उस पर रिसर्च हो चुकी है, ऑलरेडी प्रूवन है, और उसको लेबल किया गया है दैट इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ इंसैनिटी। और जो अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है वो इस लेवल की मेडिकल कंडीशन है कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी कंडक्ट को हिंडर कर रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को हिंडर कर रही है, उसकी रैशनल और जजमेंट को हिंडर कर रही है। तो ये चीजें मौजूद होना जरूरी है। फिर है कि he has no self control over the things he is doing. If he is committing a crime, he has no self control towards it. If the crime has been committed, it is because of the underlying mental disorder. And finally, if the crime has been committed, the intent should be there, that because the intent was because of the disease, not because uski fully functional capability brain tha that he is killing someone. तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं तो इंसेन जो पर्सन होगा वो अंडर द एक्ट ऑफ डिल्यूजन जो होगी उसकी जो सजा होगी वो रिड्यूस हो जाती है, और उसको ही इज सेंट फॉर अ करेक्शन सेंटर कि जहाँ पे उसकी डिजीज को करेक्ट किया जाए। वो उसकी एडमिशन जो क्राइटेरिया यू हैव प्रीवियसली डिस्कस किया कि 6 मंथ्स के अंदर उसको ट्रीटमेंट रखा जाता है, फिर देखा जाता है कि आइदर सिम्टम्स आर इम्प्रूव्ड नॉट। अच्छा, सुसाइड इज द मेजर रिस्क एज वी हैव डिस्कस्ड, एंड होमिसाइड, ऐसे केसेस में होमिसाइड बहुत ज्यादा होता है इफ ही इज responsible for society, harmful for society. Second is the hallucination. Hallucination, false perception by senses without any external object or stimulus. अब इसमें sensory involvement होती है कि जिसमें external object मौजूद नहीं है। delusion में external object मौजूद होता है और उसकी beliefs change होते हैं। इसमें एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, बट इसकी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होती है। कौन सी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होती है? कॉमनली ऑडिटरी और विजुअल इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरे ऑल्फैक्टरीज होते हैं, गस्टैटरी मींस टेस्ट इन्वॉल्व होता है, टेक्टाइल एंड साइकोमोटर होता है जिसमें लिम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। कॉमनली किन कंडीशंस में दिया जाता है? अगेन हाई फीवर में देखा जाता है हेलुसिनेशंस आती हैं। ड्रग इंटॉक्सिकेशन एज वी हैव डिस्कस्ड, जो कॉमनली ड्रग ऑफ डिपेंडेंस होती है उनमें होता है, या विड्रॉल स्टेट में आता है कि जब वो किसी क्रॉनिकली डिपेंडेंट है किसी ड्रग सब्सटेंस ऑफ अब्यूज पे और उसको रोका जाता है तो वो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और जब विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं तो कॉमनली ये मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स डेवलप करता है। हेलुसिनेशन में अगेन विजुअल हेलुसिनेशन है, इट मींस कि इसकी सेंस ऑफ साइट को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नल सिमुलाई है नहीं, कोई चीज मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल ही इज सीइंग समथिंग व्हिच इज नॉट देयर। ही ऑब्जर्व समथिंग अगेन व्हिच इज एनीथिंग विदाउट बीइंग प्रेजेंट।
इसी तरह ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होता है जिसमें फॉल्स परसेप्शंस होती है, कोई साउंड है, मींस एनीथिंग ऑफ अ साउंड, flying of a bird, anyone who is talking, a music, any sound, a child crying, he will perceive, he will hallucinate, he will think that even if they are not there, he will think that these sounds are saying something. इसकी perception जो होगी वो change होगी. Olfactory hallucination में primarily smell or odor होता है. He has even if there is no, again no external stimuli, there is no smell is present in his surrounding, but he will feel that there is any pleasant or unpleasant, sweet or bitter or sour without any source which is present. He will feel it. किन लोगों में मिलता है? कॉमनली स्किज़ोफ्रेनिया. तो स्किज़ोफ्रेनिया जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये ऐसे थॉट्स होते हैं, ये डिल्यूजन या हेलुसिनेशन इल्यूजन्स होते हैं, कॉमनली मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कि जिसमें रियलिटी से ये बिल्कुल अलग इनकी थॉट्स होती हैं, ये कांटेक्ट में नहीं रहते रियलिटी में स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स जो होते हैं. इसी तरह गस्टेटरी हेलुसिनेशन होते हैं जिसमें टेस्ट जो होगा उनको लगेगा ऑल द टाइम, उनकी जो टेस्ट बड्स होंगे वो डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट एक्सपीरियंस करेंगे. अगेन वही कि बिटर है, सावर है, स्वीट है, नो मेटालिक टेस्ट है, तो ये उनकी हेलुसिनेट कर रहे होते हैं. टेक्टाइल हेलुसिनेशन जो होता है फीलिंग ऑफ क्रीपिंग ऑफ इंसेक्ट ओवर द बॉडी. ये कॉमनली जो होता है ये हेलुसिनेशन अगर कोई ड्रग पे डिपेंडेंट है उसमें मिलता है. कौन सी ड्रग होता है? कॉमनली जो है ये कोकेन में मिलता है. जो कोकेन एडिक्ट्स होते हैं अगर वो विड्रॉल में आते हैं, कोकेन विड्रॉल में होते हैं, तो उनको ऐसी फीलिंग होती है कि देयर समथिंग इज क्रॉलिंग थ्रू आउट ऑन देयर बॉडी. तो जो कि इन रियलिटी में तो ये होता नहीं है, लेकिन उनकी थॉट्स होती है. फिर है साइकोमोटर हेलुसिनेशन कि जिसमें वो फील करते हैं कि मेरे लिम्स खुद मूव कर रहे हैं. ऑल्दो ही इज लाइंग ऑन हिज बेड बट ही फील दैट उसके लिम्स मूव कर रहा है. वो ही विल शाउट, ही विल से दैट तो मेरे हाथ उठ रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो जर्की मूवमेंट्स आ रही है मेरी बॉडी में, बट दैट इज नॉट प्रेजेंट. सो दिस साइकोमोटर हेलुसिनेशन. नाउ अगेन मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है कि बेसिकली ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते. यू डोंट नो आपके थॉट्स आ रहे हैं, यू आर नॉट वॉलंटरी थिंकिंग, बट इनवॉलंटरी आपके पास थॉट्स आ रही होती हैं. तो अगर कोई पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एन अनप्लेजेंट हेलुसिनेशन, कोई ऐसी हेलुसिनेशन में है, तो उसमें वो कोई क्राइम कमिट कर सकता है. और अगर वो क्राइम कमिट करता है जिसमें कि अगर सुसाइड करता है या होमिसाइड करता है, तो जो कमीशन ऑफ जो क्राइम होगा वो उसका कम हो जाएगा. क्यों? बिकॉज अंडरलाइंग डिजीज मेंटल डिसऑर्डर से ये गो थ्रू कर रहा है, तो ये प्रूव करना बहुत जरूरी है. Now let's study, explain it with a case study. That is a 42-year-old male who he went to a ENT surgeon and he complained that he has an insect in his right ear. Now जब ENT ने उसको examine किया multiple times, उसने कहा कि there is no evidence of insect in the right ear. लेकिन वो क्योंकि he was अभी तो proven नहीं है सर्जन के पास that he is suffering from any disease, he tried to convince the surgeon that there is an insect, they have made a track and they're hidden inside my ear. अच्छा जब because this history tells you a lot of things, because वो convince कर रहा है कि मेरे कानों की examination हो गया, उसका physical examination हो गया, उसका systemic examination हो गया, and there is nothing. So he was referred to a psychiatric evaluation. जब उसकी साइकेट्रिक इवैल्यूएशन हुई तो उसमें पता चला 2 months अगो की हिस्ट्री उसकी आ रही थी, जिसमें suddenly he wakes from sleep and he felt that something is entering in the right ear and he tried to remove it. अच्छा उसके बाद क्या होता है, ऐसी जब हिस्ट्री होती है and you tell the people around you and you tell them a doctor ने कोई finding नहीं, then the people who are around you give you a treatment option. So he was told that put some sweets and anything. He tried everything, but still there was of no use. Now basically the history is important in the sense that ये क्या बता रही है. नंबर 1, एक तो ये कि हिस्ट्री से ये आपको पता चल रहा है कि सफरिंग फ्रॉम अ डिल्यूजन, मींस इसके फॉल्स बिलीव इन एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ही और वो तो बिलीव कर रहा है कि दैट इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट. कि डायग्नोसिस क्या है? दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिल्यूजन. तो इस किस्म की हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट होते हैं. इसी तरह होता है इल्यूजन, फॉल्स इंटरप्रिटेशन. अब यहाँ क्या होता है, आपका ब्रेन ही इंटरप्रिटेट सही नहीं कर रहा सेंसेस को, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो कि मौजूद है बट आप उसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सामने एक अगर रोप रखी हुई है एंड यू इंटरप्रिटेट नो दैट्स नॉट अ रोप, दैट्स अ स्नेक. इसी तरह पिक्चर में देखें, अगर आप कोई इंटरप्रिटेशन आपकी होगी, आप कहोगे नो दैट्स अ ब्रेन, बट एक्चुअली दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड्स.
सो इसकी इंटरप्रिटेशन आपकी गलत हो रही होती है। सेम पर्सन में अगर होता ही है कि नॉर्मली अगर सेम पर्सन, हमें भी बाज़ औक़ात होता है, वी टर्न ऑफ अ लाइट, एक कमरे में एक लाइटनिंग ऐसी अपेयर आती है, वी थिंक दैट समवन इज स्टैंडिंग, व्हेन वी ओपन द लाइट वी से नो देयर इज नो वन देयर। सो अगर सेम पर्सन होगा, वो अगर वो इल्यूजन को एक्सपीरियंस करता है तो उसकी ब्रेन की वर्किंग ये होती है कि वो उसको फिर डिफाई करता है कि नो दिस इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन इंसेन पर्सन जो होता है वो कंटिन्यूअसली उस इंटरप्रिटेशन पर रहता है, इवन ऑल ऑड्स, इवन ऑल एविडेंस, और वो अकॉर्डिंग टू दैट जब अपनी बिलीफ बना रहा होता है। इल्यूजन्स और फीचर्स ऑफ साइकोसिस, साइकोसिस का मतलब होता है सिवियर मेंटल डिसऑर्डर के जिसमें इंडिविजुअल जो है वो रियलिटी से बहुत दूर होता है, यानी कि रियलिटी उसको पता ही नहीं होता है कि ट्रू रियलिटी या फॉल्स रियलिटी, मतलब ही कैन नॉट इंटरप्रिटेट इट, सो दिस इज नोन एज साइकोसिस। पार्टिकुलरली ऑफ ऑर्गेनिक टाइप, यानी कि डिमेंशिया है या फिर डिलीरियम है, उनमें आपको मिलता है। इम्पल्स, this is a sudden irresistible force compelling a person to the conscious performance of some act, यानी कि एक थॉट आई है, हम जैसे हमारे ब्रेन में कोई थॉट आती है, विल डिसाइड आइदर वी शुड डू इट और नॉट, इफ इट्स गुड फॉर अस और नॉट। लेकिन अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर से इफ ही सफरिंग ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, दैट थॉट, दैट इंपल्स जो स्टिमुलाई होता है, he will do it and he will do it एवरी टाइम। तो उसकी विदाउट एनी मोटिव वो कुछ सोचेगा नहीं, उसकी कोई फोर थॉट नहीं होगी कि इससे मुझे कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, ही विल जस्ट डू इट, ही हैज नो कंट्रोल ओवर इट। तो इसकी जो टाइप्स होती हैं वो कॉमनली क्लेप्टोमेनिया मींस पैथोलॉजिकल कंपल्जन उन लोगों में जो कि आर्टिकल्स को स्टील करते हैं। अब वो आर्टिकल्स उनके किसी काम के नहीं होते हैं, कोई उनको फायदा नहीं मिल रहा होता, कुछ नहीं है, बट क्योंकि दे आर सफरिंग फ्रॉम एन इम्पल्स, उनको एक थॉट आई एंड देन दे विल डू इट। तो स्टीलिंग ऑब्जेक्ट, तो कंटिन्यूसली जो लोग छोटी छोटी चीजें स्टील करेंगे लाइक पेपर, पेंसिल, एनीथिंग, तो वो क्लेप्टोमेनिया होता है। डिप्सोमेनिया मींस कंपल्जन टू ड्रिंक अल्कोहल बेवरेजेस। पायरोमेनिया मींस वो लोग जो कि कंटिन्यूसली दे सेट थिंग्स ऑन फायर, लेकिन एक दफा किसी ने आग लगा दी तो उस पर आप उसको पायरोमेनिक नहीं आप लेबल करते। उसके लिए जरूरी है कि कंसेक्यूटिव 2 to 3 इवेंट्स ऐसे हों, तो फिर उसको आप उसकी वैल्यूएशन होती है और फिर उसको लेबल किया जाता है पायरोमेनिया पे। फिर है म्यूटिलोमेनिया मींस there is irresistible desire to mutate or injure animals, commonly domestic pets होते हैं, उनकी इंजरी होती है। Oniomania means shopping addictions होते हैं, they cannot help themselves, they are chronic shoppers. Trichotillomania means noticeable hair loss उन लोगों में जो कि persistent hair pulling करते हैं over the period of time, क्योंकि even if they want to stop, they know they are damaging themselves, they continue to do that act repeatedly, तो उनकी जो होती है वो hair loss उनके head पे noticeable नजर आते हैं, that is trichotillomania। फिर है suicidal impulse means तो suicidal thoughts आ रही होती हैं, एक आया कि you need to harm yourself and then they will do it। तो ऐसे लोगों में जो होता है commonly उन लोगों में मिलेगा जो कि किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में हो, जैसे LSD वगैरह होते हैं, जो कि suicidal thoughts और उसकी वजह से वो एक्ट को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है होमिसाइडल इंपल्स, ये क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशंस में होता है उन लोगों में जो कि ड्रग अब्यूज कर रहे हो, जैसे कि कैनबिस, जो कि कॉमनली क्रॉनिक अब्यूजर्स होते हैं कैनबिस की, उनमें ये होता है कि दे सफर फ्रॉम अ डिल्यूजनल, साथ साथ उनके अंडरलाइंग डिल्यूजन भी होता है, and then they go on a killing spree, means whoever comes in their side they'll kill him and finally in the end they will kill themselves। तो ये कैनबिस इंटॉक्सिकेशन होता है। इसकी मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ये है कि सेन पर्सन जो होगा, अब सेन और इनसेन का डिफरेंस आ रहा होता है इसमें, वो कहीं ना कहीं अपनी इंपल्स को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन इनसेन जो पर्सन होता है ही कैन नॉट कंट्रोल, बिकॉज वो रियलिटी से दूर होता है, ही कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। कॉमनली डिमेंशिया, एक्यूट मेनिया और एपिलेप्सिक पेशेंट जो होते हैं उनमें मिलता है। फिर है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन जो होता है वो उन लोगों में होता है जो कि पर्सिस्टेंट और रिकरेंट एक ही एक्ट बार बार करते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं सकते, कोई कॉन्शियसनेस उसमें, कोई रीजनिंग नहीं होती। कॉमनली है कि if they are cleaning the hand, the multiple times they will clean the hand, means if they are bolting the door, the multiple times they will bolt the door even they know that the door is closed। अच्छा, इस टाइप का जो कंपल्सिव फिनोमेना होता है ये बेसिकली इनवॉलंटरी होता है, इसमें ये आप दे डोंट नो दे आर डूइंग इट, और पर्सनालिटी के बिल्कुल अलग होता है, मींस
At one point you will see them that they are very normal, and other point you will see that they are doing things which are very repetitive. तो क्या होता है, इनकी पर्सनैलिटी से थोड़ी अलग पिक्चर आ रही होती है. तो सेम पर्सन होगा, वो भी अगर एक दो टाइम कोई चीज करेक्ट करेगा, वो कर लेगा, उसके बाद ही नो दैट ही हैव डन इट, वो फिर बैठ जाएगा. लेकिन इनसेन पर्सन होगा, वो ही विल नॉट रेस्ट, वो मल्टीपल टाइम्स जो होगा वो एक्ट को परफॉर्म करेगा इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड. अच्छा, जो टर्म्स जो कॉमनली यूज होते हैं, इफेक्ट. इफेक्ट का मतलब होता है कि जो इमीडिएटली आप किसी का एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्जर्व करें, यानी कि ओवरऑल डीमेयर होता है. जब आप किसी से बात करते हैं, जब हिस्ट्री, बेसिकली दिस टर्म इज यूज्ड फॉर, हम साइकियाट्रिक असेसमेंट कर रहे होते हैं मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स की, तो उसमें जब आप हिस्ट्री के बाद जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उसमें आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हो. इसका मतलब होता है इफेक्ट, कि उसका ओवरऑल डीएमआर कैसा है. आप पिक्चर में देखें, एट वन टाइम ही इज क्राइंग, एट वन टाइम ही इज स्माइलिंग, एट वन टाइम ही इज इन एंग्री, एट वन टाइम ही इज मैड, एट वन टाइम ही इज जस्ट लाइक अ प्लेन एक्सप्रेशन आ रहा है. तो उसमें ये होता है कि इसको ओवरऑल की प्रेजेंटेशन होती है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता चलता है कि ये रियलिटी से इंटैक्ट है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स में उसको डिफरेंस पता चल रहा है कि नहीं. अच्छा, अब ए फैक्ट को मूड से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. ए फैक्ट जो होता है वो एक्सटर्नल डीएमआर होता है, कि आपका पता चलता है कि उसकी है क्या, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है. और मूड जो होता है वो इंटरनल थॉट्स होती हैं. मींस बार बार ये होता है कि एक्सटर्नली यू आर हैप्पी, बट इंटरनली यू आर वेरी सैड, एंड जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो बॉडी में चल रहा होता है, मूड वो आपको बताता है. जैसे ये नॉर्मल ए फैक्ट है, कंस्ट्रक्टेड ए फैक्ट है, ब्लंट ए फैक्ट है. तो ये इस किस्म की अपीयरेंस होती है मेंटल डिसऑर्डर में, इसको अप्रिशिएट करना होता है. फिर नेक्स्ट टर्म है फ्यूगो. फ्यूगो इज ए डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. अब ये क्या होता है कि इसमें रिवर्सिबल एमनीसिया होता है. इसमें मींस कि अगर इफ इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर, तो इसकी पर्सनैलिटी में क्या होता है, एक तो प्रीवियस इसकी जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है. प्रीवियस मेमोरी जब इसकी लॉस होती है, तो वो अपनी बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज, उसकी जो अपीयरेंस होती है, उसकी आइडेंटिटी वो अपनी चेंज कर लेता है. यानी कि एक अपीयरेंस में ही इज वेरी एजुकेटेड एंड ही इज वर्किंग, एंड ही सफर्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, एंड नेक्स्ट पर्सनैलिटी विल बी वेरी timid and you think he's uneducated, he doesn't know anything. तो ये इस किस्म की इसकी पर्सनैलिटी चेंजेस आती हैं. अब क्या होता है, या तो ये कुछ डेज के लिए होगा या मंथ्स में, उससे टाइम ज्यादा हो सकता है. कॉमनली लोगों में होता है जो कि अगर ये मेमोरी लॉस होती है और रोडों पे फिर रहे होते हैं एंड दे कुड नॉट फाइंड, तो ये प्रेजेंटेशन होती है. लेकिन लोगों में मिलेगा हिस्टेरिया, स्किज़ोफ्रेनिया एंड एपिलेप्सी जो होती है, उन लोगों में मिलता है. दूसरा उन लोगों में होता है कि उनके अंडरलाइन कोई स्ट्रेस हो, प्रोलॉन्ग कोई लाइफ लॉन्ग ट्रॉमेटिक एपिसोड हुई हो, कि जिसमें उनके अंदर मेमोरी लैप्सेस होती हैं. फिर है कंफैबुलेशन. कंफैबुलेशन का मतलब होता है अनकॉन्शियस फिलिंग ऑफ मेमोरी. मीनिंग मेमोरी गैप्स आ रही होती है बीच बीच में, यानी कि कोई तो एमनीसिया हुआ, एक पॉइंट पे एमनीसिया हुआ, सेकंड पॉइंट पे द मेमोरी रिटर्न्स. अब जो पॉइंट है जहां पे उसको एमनीसिया हुआ है, वहां पे ब्रेन जो है वो अपनी मेमोरीज बनाता है. एंड अगर उससे कोई सवाल पूछा जाए कि इस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हुआ था, तो व्हाट ही विल नॉट रिमेंबर इट क्या हुआ था, बल्कि क्या होगा कि वो अपनी मेमोरी बनाएगा. ये हुआ था, मैं यहाँ गया था, मैंने ये किया था. तो आप ऐसे इस पीरियड में फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. उसकी असेसमेंट आ जाती है ट्रू और फॉल्स में, आदर ही इज लाइंग और आदर ही इज टेलिंग द ट्रूथ. आईक्यू इसी चीज में आता है. आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस कोटेंट होता है. बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि आपने डिफरेंशिएट करना है कि अ पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड और इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर. हमेशा याद रखिए, मेंटल डिसऑर्डर जिनको होता है, दे आर नॉट मेंटली रिटार्डेड. मींस उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज को हिंडर नहीं होते, दे विल लर्न इट, दे विल मेक मेमोरी. लेकिन मेंटल रिटार्डेड में होता है उनकी मेमोरीज नहीं बनती हैं, उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है ब्रेन की, वो हिंडर हो जाती है. तो यहाँ जरूरी है कि आपने आईक्यू को असेस करना होता है. फिर है साइकोपैथ. द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ए क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर, अगेन वायलेंट सोशल बिहेवियर होता है. अब इनमें क्या होता है, दो चीजें मिलती हैं. एक तो ये कि लैक ऑफ एम्पैथी, गिल्ट और कॉन्शियस और रिमोर्स होता है. दूसरा ये होता है कि एक्सटर्नली दे में अपीयर नॉर्मल, पर इंटरनल में मूड होता है ना, वो वायलेंट होता है. या ऑपोजिट भी हो सकता है कि ऑपोजिट वायलेंट होगा, इंटरनली दे आर वेरी काम. तो इसमें दोनों फीचर्स मिलती हैं साइकोपैथ में. फिर है ट्वाइलाइट स्टेट. इसका मतलब है डिस्टर्बेंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन विद मींस एक टाइम आया कि जिसमें आपकी जो
ओरिएंटेशन है और कॉन्शियसनेस है, उसमें पीरियड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर हेलुसिनेशन हुआ कि जिसमें इसने कोई एक्ट किया और उसके बाद ही देन रिटर्न बैक टू नॉर्मल, तो दिस इज अ ट्वाइलाइट स्टेट। इन सब चीजों में जब हम इंसैनिटी की बात करते हैं तो उसमें एक टर्म यूज होती है, दैट इज अ लूसिड इंटरवल। नाउ लूसिड इंटरवल बेसिकली ये दोनों चीजों में मिलता है। लूसिड इंटरवल हमें एक मेंटल डिसऑर्डर में भी मिलेगा और हमें मिलेगा इन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कॉमनली इन एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज जो होते हैं उनमें मिलता है। सो लूसिड इंटरवल की इम्पोर्टेंस इंसैनिटी में इसलिए है कि यू हैव टू प्रूव इन अ कोर्ट। अगर कोई ऐसा केस आता है, मोस्टली लोग प्ली लेते हैं लूसिड इंटरवल की या इंसैनिटी की जो प्ली लेते हैं उसमें ये होता है कि वी डिड दिस एक्ट एंड वी डिडंट नो, तो उसमें आपको एज ए मेडिकली प्रूव करना होता है कि इज इट ट्रू और फॉल्स। लूसिड इंटरवल वो पीरियड इंसैनिटी यानी कि मेंटल डिसऑर्डर को वो पीरियड होता है कि जिसमें insanity के symptoms disappear हो जाते हैं। He is completely normal. His thoughts, his memory, his personality is completely normal. A period of time, and that period of time could be hours, minute or days, and then again उसके symptoms जो होंगे वो insanity के आ जाएंगे। तो उस period of जो normality आती है उसको हम कहते हैं lucid interval। कॉमनली जो लूसिड इंटरवल आता है वो मेनिया में होता है और मेलैंकोलिया में होता है। मेलैंकोलिया का मतलब होता है एक्सट्रीम सैडनेस, किसी की थॉट्स होते हैं कंप्लीट डिप्रेसिव और सैडेन एटमॉस्फेयर होता है, उसको मेलैंकोलिया कहते हैं। द पर्सन रिस्पॉन्स इस लूसिड इंटरवल का जो पीरियड उसमें अब इंडिविजुअल इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स, मतलब जो उसने काम किया, he has committed a crime, he is responsible for it। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेल्युएट करना होता है। इफ ही कमिट्स अ क्राइम देन ही मे टेक द प्ली ऑफ प्रीवियस इंसैनिटी। अब होता यह है कि फॉर एग्जांपल इफ ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ एनी साइकियाट्रिक इलनेस एंड ही कमिटेड अ क्राइम, नाउ ही इज नॉर्मल, बट होता यह है कि इसको कोर्ट में यूज करने के लिए व्हाट दे डू इज दैट दे टेक अ प्ली ऑफ इंसैनिटी दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम any mental disorder, or for example I'm taking any depressants, or I have a depression, or I have a state of a delusion. What they do is that they take plea for it. Now अब होता है डिफिकल्टी आती है डॉक्टर्स के लिए कि हाउ टू से दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस व्हेन ही कमिटेड अ क्राइम। यहाँ पे आपकी असेसमेंट होती है। अच्छा, और हमने हेड इंजरी में भी क्या था, लूसिड इंटरवल हेड इंजरी में जो उसकी डेफिनेशन है वो ये है, इफ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम ए हेड इंजरी ही रिगेन्स कॉन्शियसनेस। जब वो कॉन्शियसनेस रिगेन करता है दैट पीरियड इज अ लूसिड इंटरवल, और उसके बाद सडनली ही बिकम्स अनकॉन्शियस, तो अनकॉन्शियसनेस का बीच का कॉन्शियसनेस टाइम आता है, दैट इज अ लूसिड इंटरवल। ये ट्रॉमा में होता है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है इंसैनिटी और हेड इंजरी में। एक तो ये कि इंसैनिटी में हिस्ट्री होती है, उसमें हेड इंजरी की होती है, सिम्टम्स ऑफ इंसैनिटीज होते हैं, प्रीसीडिंग सिम्टम्स में उनमें कंकशन के आते हैं, फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ इंसैनिटी वो तो प्रोलॉन्ग रहती है इंसैनिटी में, लेकिन हेड इंजरी में होता है कि आपके पास कंप्रेशन ऑफ ब्रेन, ब्लीडिंग अगर कलेक्शन हो रही है तो वो आपका हिस्ट्री होती है। इसकी अकरेंस इंसैनिटी की जो होती है में फ्रीक्वेंट होती है। लूसिड इंटरवल का ना टाइम it's very frequent. If he's taking medications he will have a period of lucid interval, if not then insanity। और हेड इंजरी में ये होता है कि एक टाइम आता है कि जिसमें वो कॉन्शियसनेस रिगेन करता है एंड देन ही सडनली डाइज। लूसिड इंटरवल की कॉजेस क्या हैं? एक तो हमने डिस्कस कर लिया है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर ही सफरिंग फ्रॉम, और दूसरा ये ट्रॉमेटिक हेड इंजरी। ट्रॉमेटिक हेड इंजरी में क्या होगा, क्यों डेवलप करता है लूसिड इंटरवल? इनिशियली तो वो ट्रॉमा की वजह से वो अनकॉन्शियसनेस में जाता है, उसके बाद इफ ही रिगेन्स कॉन्शियसनेस तो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ब्लड की कलेक्शन हो रही होती है सराउंडिंग द ब्रेन, एंड देन इट कंप्रेसेस द ब्रेन। अगर तो कलेक्शन मिनिमल है तो वो कॉन्शियसनेस रिगेन कर, लेकिन अगर मैसिव कलेक्शन ऑफ ब्रेन ऑफ ब्लड हो रहा है दैट में रिजल्ट इज डेथ, तो वो पीरियड होता है लूसिड इंटरवल। मेंटल डिसऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ द क्वेश्चन इज, अब हम बात कर रहे हैं, हमने सारी मेंटल डिसऑर्डर हमने पढ़ी हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको रिस्पॉन्सिबल करेंगे दैट ही इज इनसेन एंड ही इज नॉट इनसेन।
अब लायबिलिटी आती है कि इफ ही हैज कमिटेड एक्ट ऑफ कमीशन हुआ है या एक्ट ऑफ ओमिशन हुआ है, ये अगेंस्ट द लॉ है, विद द लॉ है, तो लायबिलिटी ऑफ द पनिशमेंट है, किस तरह डिफाइन इसको किया जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर द लॉ जो है वो हमेशा प्रिज्यूम करता है कि पेशेंट इज मेंटली साउंड अनटिल अनलेस ही इज प्रूवन। मींस इफ एक लेबल कर दिया जाए बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिजीज, उसने क्राइम कमिट किया, द लॉ डज नॉट एक्सेप्ट इट। द लॉ सेज यू हैव टू प्रूव इट दैट ही वाज सफरिंग from the state of mental disease when and at the time the crime was committed. So there needs to be proof. दो चीजें आती है इसमें, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो है वो आपको प्रूफ करना होता है। एक तो इसकी जरूरत उस वक्त पेश आती है जब प्रॉपर्टी को मैनेज करना होता है। हमेशा कोर्ट एक गार्डियन को अपॉइंट करता है, अगर कोई मेंटली इल है और उसकी प्रॉपर्टी है तो जो कि उसको मैनेज करता है। उसके बाद पावर ऑफ अथॉरिटी होती है ताकि वो उसकी डेब्ट्स और उसकी पेमेंट को करे, और उसके बाद ओनली अ पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट पर्सन होता है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो जो होगा उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। अब वो कौन हो सकता है इंडिविजुअल, वो जो होगा वो कोर्ट अपॉइंट करता है, नॉट नेसेसरी नेक्स्ट टू किन। कॉन्ट्रैक्ट्स, a contract is invalid if the patient contracts, अगर वो जो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, if you are suffering from any mental illness, that contract is invalid. That needs to be defined that at the time when the contract was made, he was mentally sound. He was not unsound, but mentally sound. He knew what the nature of the contract was and what contract he's entering into. इसी तरह मैरिज और डाइवोर्सेस में होता है कि अगर नल एंड वॉइड होती है, इफ द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम इंसैनिटी, तो वो नल एंड वॉइड मैरिजेस हो जाते हैं। फिर एक कॉम्पिटेंसी एज अ विटनेस, इफ एन इनसेन पर्सन हैज विटनेस्ड अ क्राइम, नाउ वहां पे उसकी क्वेश्चन आती है, इज ही कॉम्पिटेंट इनफ? उसकी कॉम्पिटेंसी आप कैसे प्रूव करोगे? थ्रू expert examination that he is competent enough. Either if he's telling someone's name, maybe he was at that time he was in a state of a lucid interval, that needs to be proven. फिर है वैलिडिटी ऑफ द कंसेंट, अगर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन या इंसेन पर्सन। अच्छा, ये जो चीज आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, दोनों चीजें, इंसेन भी और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को ड्रग इन्फ्लुएंस के अंदर है, क्या वो ही इज केपेबल इनफ टू गिव अ वैलिडिटी ऑफ कंसेंट, दैट नीड टू बी प्रूवन। फिर है टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी, वैलिड विल, एंड मेंटली इल पर्सन इज ही केपेबल इनफ टू मेक अ वैलिड विल। फिर है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिमिनल में आता है कि कोर्ट ये कहता है कि नथिंग, जैसे हमने डिस्कस की, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय पर्सन हु एट द टाइम व्हेन ही कमिटेड इट वाज ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड वी नीड टू प्रूव इट अदर इट्स रॉन्ग और कंट्री टू द लॉ। जैसे पिक्चर में होता है, मॉर्निंग में ही वाज वेरी नॉर्मल और इन द इवनिंग ही डिड नॉट नो एनीथिंग, नॉट कॉम्पिटेंट बन जाता, तो इन नीड टू बी प्रूवन। जब हम बात करते हैं क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसमें कॉमनली आता है नेल मैकनॉटन रूल्स का। दिस इन 18th सेंचुरी में ये इंसैनिटी के लिए जो है ये रूल असेसमेंट जो है ये प्रोड्यूस हुआ था, और किसके नाम पे रखा गया था? पर्सन मैकनॉटन बेसिकली he was a person who was suffering from underlying mental illness that was delusion। और delusion भी कौन सी? delusion of persecution, means a person was telling him to means the third voice होती है was telling him to do something bad, or the opposite person is enemy. He was suffering from a delusion, so he committed a crime, he killed a secretary of the prime minister under the influence, उसको लगा कि that person is his enemy। Now to prove his crime, it was produced in the court that this person is suffering from a mental illness. Now question जब court ये आता है कि you need to prove it that he was suffering from a defect at the time he committed a crime, तो उसके लिए जो assessment tool आया था वो था legal test of insanity। तो लीगल टेस्ट ऑफ इंसैनिटी, जिसको राइट और रॉन्ग टेस्ट करते हैं कि उसको क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल करना है कि नहीं। अब उसमें तीन चीजें होती है, उसके तीन फैक्टर्स जो उसकी कंपोनेंट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। नंबर वन, एक तो ये कि आपके पास प्रूवन एविडेंस हो कि ही सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिजीज, को प्रूवन हो, कोई सर्टिफिकेट हो कि ऑलरेडी वो कहीं दिखा रहा था, ही वाज मेंटल साइकियाट्रिक अंडर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट था, अंडर कोई डॉक्टर के थ्रू वो अपनी मेंटल डिजीज को चेकअप करा रहा था। दिस मेंटल डिजीज और जो डिफेक्ट जिसके सिम्टम्स इसमें हैं,
क्या एट द टाइम ही कमिटेड अ क्राइम वो मौजूद थे कि नहीं, दैट नीड टू बी प्रूवन। और उसके बाद उसके अंदर थर्ड कंपोनेंट ये होना चाहिए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि ये जो क्राइम कमिट कर रहा है, डिड ही नो कि ये फर्स्ट डिग्री क्राइम था, ये सेकंड डिग्री था, थर्ड डिग्री था, क्राइम की नेचर उसे पता थी दैट ही इज किलिंग ऑपोजिट ह्यूमन बीइंग। तो ये तीन चीजें, राइट और रॉन्ग टेस्ट जो था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था टू टेस्ट द इंसैनिटी। अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं तो इसको हम थोड़ा अच्छी तरह समझ सकेंगे। देखिए, अगर अगर किसी ने, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिल्यूजन, इन्फ्लुएंस ऑफ डिल्यूजन मींस अ पर्सन थिंक्स अनदर पर्सन इज अटेम्प्टिंग टू किल हिम, और वो सेल्फ डिफेंस में वो ऑपोजिट बंदे को मार देता है, तो ही विल नॉट बी हेल्ड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो इंसेन है। इसी तरह अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसैनिटी, दैट इज डिल्यूजन, अ पर्सन थिंक्स अनदर मैन, दूसरे बंदे को जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है वो उसको इंटरप्रिटेट करता है दैट्स अ वाइल्ड एनिमल एंड ही किल्स हिम, तो ये भी जो है वो इज नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इफ एन इंसेन डिल्यूजन पर्सन थिंक्स दैट ऑपोजिट पर्सन जो है वो उसको सीरियस इंजरी करा रहा है, अब कौन सी इंजरी करा रहा है, उसकी फैमिली को, उसकी प्रॉपर्टी को, और फिर वो उसको मर्डर करता है, तो देन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो जाती है वो ही विल बी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल। क्यों? बिकॉज इसकी नेचर ऑफ द ऑपोजिट जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे वो रिवेंज के लिए किसी को मार रहा है, किसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उसको रिवेंज के लिए मार रहा है, तो यहाँ इसकी ये चेंज। अब आती है जो हम कि फेन इंसैनिटी क्या होता है, कि कब मोटिव क्या होता है फेन इंसैनिटी का। यू नो व्हाट इज अ ट्रू इंसैनिटी, यू नो व्हाट इज अ फॉल्स इंसैनिटी और फेन इंसैनिटी। फेन इंसैनिटी का मतलब होता है कि जब कोई बंदा अपने क्राइम को, कमीशन ऑफ क्राइम को छुपाने के लिए अपने आप को इंसेन साबित करे। क्या क्या चीजें उसमें मिल सकती हैं, जैसे कि फेन एंड फॉल्स इंसैनिटी में मिलता है कि उसके सिम्टम्स जो होंगे सडन होते हैं। ट्रू इंसैनिटी में उससे मल्टीपल टाइम जब उसको एग्जामिन किया जाता है, ही इज नॉट इरिटेटेड, वो वेरी नॉर्मल होता है, उसकी अफेक्टेड फेस का फेस रहता है। लेकिन जो फॉल्स फेन इंसैनिटी करेगा उसके हमेशा मूड चेंज होंगे, वो इरिटेट होगा कि बार बार मुझे एग्जामिन क्यों किया जा रहा है। ट्रू इंसेन जो उसकी पर्सनल हाइजीन, उसकी पर्सनल अपीयरेंस जो होता है उससे इफेक्टेड नहीं होता। लेकिन जो फॉल्स फेन इंसैनिटी करेगा वो हमेशा क्लीनलीनेस का हमेशा ख्याल रखता है। ट्रू इंसैनिटी में जो होता है वो हमेशा अंडरलाइन को कॉज होती है, दैट कॉज नीड टू बी लिवर्ड, या तो ऑर्गेनिक होगी या नॉन ऑर्गेनिक होगी। और फेयर इंसैनिटी में होता है वो अंडरलाइन कॉज कोई नहीं होती, उसकी कोई ना कोई क्राइम होता है जिसकी वजह से वो आ रहा होता है।